अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देव जी से अनुरोध करूंगी कि वे पारंपरिक रिशा एवं मेमेंटो के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का औपचारिक रूप से स्वागत करें। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णु देव बर्मन जी से निवेदन करूंगी कि वे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी का पारंपरिक रिशा एवं मेमेंटो के साथ स्वागत करें। এবারে সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখবেন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণু দেব বর্মা মহোদয়। নমস্কার, সবাইকে করুমকা। মঞ্চে উপস্থিত ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং সারা পৃথিবীর পরিচিত বিকাশ পুরুষ শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি, মঞ্চে উপস্থিত ত্রিপুরা রাজ্যের গভর্নর, মঞ্চে উপস্থিত সম্মানীয় ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, কেন্দ্রীয় বিমান মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া মহোদয়, মঞ্চে উপস্থিত কেন্দ্রীয় রাজ্যমন্ত্রী কুমারী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া, অন্যান্য মন্ত্রীগণ যারা ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রিসভার সদস্য, মঞ্চে উপস্থিত রেবতী ত্রিপুরা আমাদের পূর্ব আসনের এমপি এবং সোনকরজি আমাদের এমপি। আমাকে 2 মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে, আমি চেষ্টা করব আরো কম বলার। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদের নতুন বিমানবন্দর, অত্যাধুনিক বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন এবং সেই বিমানবন্দরের নামকরণ আগেই করা হয়েছিল মহারাজা বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট। আপনারা সকলেই জানেন মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্যকে আমরা ত্রিপুরার রূপকার হিসাবে সম্মান দেয়। উনার নামে অত্যাধুনিক এয়ারপোর্ট আজকে উদ্বোধন হবে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়ে এবং তৎসঙ্গে 100টা বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের উদ্বোধন করবেন উনি। এই স্কুলগুলি সিবিএসসির সিলেবাসে হবে এবং মডেল স্কুল হবে, উৎকৃষ্ট স্কুল হবে ত্রিপুরা রাজ্যে। এরপরে আরেকটা উদ্বোধন করবেন উনি মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা এবং সেই যোজনার দ্বারা গ্রামকে কিভাবে সুরাজ দেওয়া যায়, সুন্দর করা যায়, স্বয়ং সম্পন্ন করা যায়, সেটারই একটা আন্দোলন হবে। এছাড়াও আমি বলতে চাই আমার এই সংক্ষিপ্ত ভাষণে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা গ্রামীণের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে, আপনারা সবাই জানেন। 1,70,000 ঘর 1 বছর আমরা পেয়েছি।
আমাদের প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদে এবং উনি 1,47,000 বেনিফিশিয়ারিকে নিজের হাত দিয়ে প্রথম কিস্তি ট্রান্সফার করে দিয়েছে। বিগত দিনে 5 বছরে 44,000 ঘর মাত্র পাওয়া গেছে। আর আজকে এক বছরে 1,70,000 ঘর। মোদীজি আছে তো সবই সম্ভব। সারা ভারতবর্ষ বলে মোদীজি আছে তো সবই সম্ভব। আর সেটা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রমাণ করে দিয়েছেন। আমি আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজিকে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর এই পুণ্যভূমিতে এই ঐতিহাসিক শহরে আগরতলায় স্বাগত জানায়। মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের 37 লক্ষ জনগণের পক্ষ থেকে স্বাগত জানায়। শ্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া মহোদয়কে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিমান চলাচলের, ওনাকেও স্বাগত জানায় এই ঐতিহাসিক শহরে। এবং আমি আর দীর্ঘায়িত করতে চাইব না আমার বক্তব্য, এমনি প্রোগ্রাম দেরি হয়ে গেছেন, পাবলিক সকাল থেকে এসে বসে আছেন, তাই আপনার থেকে বিদায় নিচ্ছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। अब मैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी से अनुरोध करूंगी कि वे सभा के समक्ष अपना वक्तव्य रखें। मंच पर आसीन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत के 130 करोड़ जनता के एक एक का दिल जीतने का काम किया है, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन त्रिपुरा प्रदेश के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जी, त्रिपुरा प्रदेश के हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय बिप्लब कुमार देव जी, मंच पर आसीन हमारे उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा जी, भारत सरकार में मंत्री हमारी आदरणीय कुमारी प्रतिमा भौमिक जी, मंच पर आसीन त्रिपुरा सरकार के समस्त मंत्रीगण, सांसद श्री रेवती त्रिपुरा जी, विनोद सनकर जी, और इस प्रांगण में उपस्थित अगरतला की समस्त आदरणीय महानुभाव भाइयों और बहनों, आज का दिन अगरतला की जनता के लिए एक त्योहार से कम नहीं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि आज का दिन अगरतला के भव्य इतिहास में एक नया अध्याय के रूप में स्वर्णो अक्षर ये लेखो जावे, एक ऐसा इतिहास जो माणक्य राजवंश ने अगरतला के निर्माता बनकर रचा था, एक समृद्ध इतिहास जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और उनके पुरखों तक अगरतला के इतिहास में एक अनमोल संबंध का लेखा जोखा है। और जहां एक समृद्ध इतिहास त्रिपुरा का है, वहीं एक प्राकृतिक सौंदर्य की क्षमता भी है। चाहे भव्य मंदिर की हम बात करें, चाहे झील और झरनों की हम बात करें, चाहे धान के खेतों की हम बात करें, चाहे हम अनछुए जंगलों की हम बात करें, एक संस्कृति, सुंदरता और इतिहास का एक विचित्र संगम हमारा त्रिपुरा है मेरे भाई और बहनों। और इस विचित्र संगम में आज प्रधानमंत्री जी के निर्देश के आधार पर, उनकी कल्पना के आधार पर, उनके संकल्प के आधार पर एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। कनेक्टिविटी का आधार जोड़ा जा रहा है, हवाई संपर्क का आधार जोड़ा जा रहा है, और आज एक विकास के एक नए द्वार अगरतला के लिए खुल रहे हैं। पूर्व में त्रिपुरा और अगरतला एक पिछड़ा हुआ राज्य होता था,
लेकिन आज ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का उत्तर पूर्व क्षेत्र है जो विकास के को आगाज कर रहा है। मेरे भाई और बहनों, ये क्षेत्र और ये हवाई अड्डा 70 साल में जितनी सरकारें देश में रही, उत्तर पूर्वी राज्यों में केवल 6 हवाई अड्डे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल के अंदर आज उत्तर पूर्वी भारत में 15 हवाई अड्डे और 17 हेलीपैड आज बन चुके हैं। मेरे भाई और बहनों, डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र में और राज्य ने डबल काम करके हमारी जनता को अपने तरफ से समर्पित किया है और यही हाल देश में है। 2014 तक 70 साल में केवल 74 एयरपोर्ट बने थे। आज देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 140 एयरपोर्ट पूरे देश में बन चुके हैं। मेरे भाई और बहनों, और अगर अगरतला की इस हवाई अड्डे की हम बात करें, जो 10,000 स्क्वायर मीटर का एक छोटा हवाई अड्डा था, प्रधानमंत्री जी की सोच है तो एक विराट सोच है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वो एक विश्व रूपी सोच है। आज जो उद्घाटन और लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है, वो 30,000 स्क्वायर मीटर का हवाई अड्डा, 3 लाख स्क्वायर फीट का हवाई अड्डा की शुरुआत की जा रही है, जहां केवल 13 लाख यात्री सफर कर पाते थे उस छोटे एयरपोर्ट से। आज इस भव्य हवाई अड्डे से 30 लाख यात्री अगरतला से देश के कोने कोने में जा पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, हमारी सोच और विचारधारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि अगर वुड के इत्र की तरह विकास की खुशबू अगरतला के कोने कोने में पहुंचे, ये संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ये हवाई अड्डा जो ऐतिहासिक हवाई अड्डा था, 1942 में त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम किशोर मानेक बहादुर जी ने जो स्थापित किया था, उसी एक महान विरासत को आगे बढ़ाते हुए आज जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि लोकल वोकल फॉर लोकल, तो इस हवाई अड्डे जिसमें आप लोग प्रवेश करेंगे, जहां एक तरफ स्थानीय पदार्थ, वनस्पति, कला, संस्कृति का संगम है, वहीं प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वोकल फॉर लोकल के साथ लोकल टू ग्लोबल हम ले जाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन के आधार पर पर्यावरण का संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा की बहुत कम से कम उपयोग हो, 100% सौर ऊर्जा के साथ निर्भर करता हुआ एक हवाई अड्डे का शिलान्यास हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि परिवहन ही परिवर्तन का माध्यम हो सकता है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एक कमांडर की तरह त्रिपुरा की कायाकल्प करने के लिए संकल्पित हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस अगरतला में 230 फ्लाइट प्रति हफ्ते आते हैं, जिस अगरतला को एक शहर के साथ भी जोड़ा नहीं गया था, आज कोलकाता के साथ, गुवाहाटी के साथ, बेंगलोर के साथ, डिब्रूगढ़ के साथ, दिल्ली के साथ, इम्फाल के साथ, शिलोंग के साथ, लिंगपुई के साथ, चारों दिशाओं में जोड़ा गया है। और केवल ये नहीं मेरे भाई और बहनों, इसी के साथ कृषि उड़ान की योजना, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि केवल हवाई सफर नहीं, हमारे किसानों की उन्नति होनी चाहिए। नागर विमानन क्षेत्र के साथ कृषि उड़ान योजना के साथ नवंबर के माह में रिकॉर्ड हमने कायम किया है। 4,500 किलो कृषि का उत्पादन केवल देश में नहीं लेकिन विदेश तक हमने भेजा है। चाहे वो कटहल हो, त्रिपुरा का अनानास हो, पूरे विश्व में त्रिपुरा का परचम लहराने की कोशिश रही है। तो आज के इस दिवस पर जो एक अगरतला एक चमकता हुआ सितारा है उत्तर पूर्वी भारत का, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे, हम लोग संकल्पित हैं कि उस सपना को हम पूरा करके दिखाएंगे। और आज आर्थिक विकास के विषय में एक नया अध्याय
की लिखने की खुशी साझा करते हुए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।